Hello children, I Poonam Bagga welcome you to your maths class. We are studying chapter 14 factorization from class 8th maths. In our previous video we discussed that how children make some common mistakes while doing problems based on algebra. Today also we will be doing exercise 14.4 based on that discussion. Let us see what the questions have. Find and correct the errors in the following mathematical statements. Here we have been given some mathematical statements. We have to check whether these are correct or not. We have to find the error if they are not correct, and then we have to do the correction also. We take the first one, 4 into x minus 5 is equal to 4x minus 5. First we write the given statement. 4 into x minus 5 this is equal to 4x minus 5. ये हमें दिया गया है, इसमें गलती ढूंढनी है. For this we take the LHS. 4 into x minus 5 मल्टीप्लाई कीजिए. कैसे मल्टीप्लाई होता है? ये जो मोनोमियल है जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस बाइनोमियल से, तो ये मोनोमियल बाइनोमियल की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा एंड देन वी विल गेट 4 into x minus 4 into 5. With this we will get 4x minus 20. And what is given in the question? It is 4x minus 5. So this is not equal to RHS. Why is it not equal to RHS? Because there is some error in the given statement. And what is that error? We see that this term, this is wrong. Here we see one error. This 5 should have been multiplied by 4. इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए था और वो मल्टीप्लाई नहीं किया गया है. ये यहाँ पर एरर है. And so the correct statement is we need to write the correct statement also. What is the correct statement? It is 4 into x minus 5 equal to 4x minus 20. This is the correct statement, and here we have shown the error. We take the next part also. Here we have x into 3x plus 2. This is given equal to 3x square plus 2. Now this is the given work. And here to find the error we take the LHS. LHS में क्या दिया है? x into 3x plus 2. कैसे सॉल्व करते हैं? हमें पता है कि ये जो मोनोमियल है ये बाइनोमियल की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 3x से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से भी. सो x into 3x plus x into 2. For this we get 3x square plus x into 2 will be 2x. अब ये है राइट आंसर. और क्या ये सेम है जो क्वेश्चन में दिया है? बिल्कुल नहीं. आप देखिए ये तो दिया है 3x स्क्वायर प्लस 2 और आना क्या चाहिए था? 3x स्क्वायर प्लस 2x. तो यहाँ ये जो टर्म है इसमें एरर है. और ये एरर क्यों है? क्योंकि ये जो टर्म है 2 इसको x से मल्टीप्लाई किया ही नहीं गया, जबकि मोनोमियल को बाइनोमियल के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना चाहिए था. 2 को भी x से मल्टीप्लाई करना चाहिए था पर वो नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर एरर है. एंड सो हियर वी सी दिस इज नॉट इक्वल टू RHS. The correct statement we need to write. The correct statement is, let me write the word properly. The correct statement is x into 3x plus 2. This should be equal to 3x square plus 2x. This is the correct statement. Next we have one more. Here we have been given 2x plus 3y equal to 5xy. अब बताइए क्या ये सही है? आप देखिए 2x और 3y ये तो लाइक टर्म्स ही नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल्स अलग अलग हैं. तो क्या ऐसे में इन्हें आपस में ऐड भी किया जा सकता है? तो आप देखेंगे इन्हें ऐड भी नहीं कर सकते. हम किन को ऐड करते हैं? जब दो टर्म्स लाइक हो तभी ऐड कर सकते हैं. अगर ये टर्म्स होती 2x प्लस 3x तब हम इनको ऐड कर सकते थे 5x. या टर्म्स होती 2y प्लस 3y तब हम ऐड कर सकते थे 5y. या फिर टर्म्स होती 2xy प्लस 3xy तब हम ऐड कर सकते थे 5xy. अब ये तीनों ही केस नहीं है, ये तो लाइक टर्म्स है ही नहीं. एक x है एक y है, तो लाइक टर्म्स नहीं है, तो ऐसे में इनको ऐड भी नहीं कर सकते. तो ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं बनता और ऐसे में ये आंसर बिल्कुल गलत है. वी राइट द राइट आंसर. वी सी दैट 2x and 3y are unlike terms.
so their sum will be 2x plus 3y itself, यही इनका सम रहेगा. And so the given sum, that is 5xy, ये जो दिया हुआ है is incorrect, ये गलत है. ठीक है, ये क्लियर है. We see that 2x and 3y are unlike terms. ये like terms नहीं है, unlike terms है. ऐसे में इनका जो सम है वो यही रहेगा 2x plus 3y. इनको आगे तो ऐड कर नहीं सकते, तो आंसर क्या रहेगा? यही आंसर रहेगा 2x plus 3y. ये इसी तरह से सेपरेटेड ही रहेंगे और ऐड हो रहे हैं तो बीच में प्लस रहेगा. And so this will be the answer itself. So the given sum 5xy that is given in the question, it is incorrect. This is the solution to this question. Next we take question number 4. X plus 2x plus 3x. This is given equal to 5x. Now this is given in the question. ठीक है? And what we see? We see that x plus 2x plus 3x, यहाँ पर आप देखिए 3 plus 2, ये तो 5x हो रहा है. लाइक टर्म्स है ये तीनों, ये बात तो क्लियर है कि ऐड कर सकते हैं. 3x plus 2x, ये 5x हो रहा है. पर अब ये x भी तो जोड़ना है और यहाँ पर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा? इट विल बी 1. जब भी शो नहीं हो रहा हो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पर कोएफिशिएंट है 1. एंड सो वी कैन राइट इट एज 1x plus 2x plus 3x. और अब आप ऐड कीजिए. This will be 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, and so the right answer is 6x. जबकि यहाँ क्या दिया गया है? 5x. This is wrong. Here we have one error. और यहाँ पर ये जो टर्म है इसको एडिशन में कंसिडर ही नहीं किया गया, इसको स्किप कर दिया गया. Just because the numerical coefficient it has not been shown, so it has not been added while adding these terms. तो ये गलती है यहाँ पर. ये x भी ऐड होगा, इसका कोएफिशिएंट हम 1 लेंगे इस तरह से और तब आप इसको काउंटिंग में लेंगे, ऐड करेंगे. गेटिंग इट? सो हियर वी सी दैट द करेक्ट स्टेटमेंट इज x plus 2x plus 3x, this should be equal to 6x. This is the correct statement. Next we have question 5. We have been given 5y plus 2y plus y minus 7y, this is equal to 0. This is given, and let us find the answer. 5y plus 2y plus y minus 7y, ये हमारा LHS है. अब यहाँ पर ये जो टर्म है y, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट शोन नहीं है, नहीं दिखाया गया है. दिस मीन्स इट इज़ 1 and we can write this expression 5y plus 2y plus this one can be written as 1y minus 7y. अब आप देखिए सभी लाइक टर्म्स हैं तो ऐड और सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं बिल्कुल. और ऐसे में 5 plus 2 it's 7, 7 plus 1 it will be 8, 8y minus 7y, and so the answer will be 1y. 8 minus 7 is 1, और वी कैन राइट इट सिंपली एज y. अब यहाँ पर आंसर लिखना है तो इस 1 को हम शो ना भी करें तो आंसर सही होगा. y वी कैन राइट, एंड व्हाट वी सी हियर, द आंसर गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज 0 and here we are getting it as y. So this answer it is wrong. Here we see one error. और ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि इस y को कंसिडर नहीं किया गया है. यहाँ पर 5 plus 2 देखा, 7y कर दिया, फिर 7 में से 7 माइनस करके और 0 आंसर लिख दिया. इस टर्म को तो कंसिडर किया ही नहीं गया और यही गलती है यहाँ पर. जब भी हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट विजिबल ना हो तो आप समझ जाइए कि वो है 1, और तब आप उसको काउंटिंग में लेते हुए ऐड करेंगे और फिर आपका आंसर अलग आएगा और वो सही होगा. एंड सो हियर वी राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इज here we write 5y plus 2y plus y minus 7y, this is equal to simply y. This is the correct statement. Okay, getting it? Next we take the part question 6. Here we have been given 3x plus 2x, it is equal to 5x square. अब आप आइडेंटिफाई कीजिए क्या गलती की जा रही है यहाँ पर. सोचिए ज़रा. यू सी दैट 3x and 2x,
दीज आर लाइक टर्म्स, 3x प्लस 2x, ये है हमारा LHS। और ये लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स के केस में सिर्फ जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स हैं वो ही ऐड होते हैं, जो वेरिएबल पार्ट है वो एज इट इज़ सेम लिखा जाता है। सो हियर वी विल बी एडिंग 3 प्लस 2 5 और वेरिएबल पार्ट एज इट इज़ आएगा x। द आंसर शुड बी 5x, और जबकि यहाँ क्या आंसर आ रहा है 5x स्क्वायर। सो हियर वी सी वन एरर, दिस इज रॉन्ग। यहाँ क्या किया गया, 3 और 2 को तो ऐड कर दिया और x को x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई तो नहीं करना है, क्वेश्चन में तो ऐड कर रहे हैं, तो अपने आप ही ये गलत हो गया है। एंड सो वी कैन से द करेक्ट स्टेटमेंट इज 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x। तो समझ गए आप, जब भी लाइक टर्म्स हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं और वेरिएबल पार्ट एज इट इज़ लिखा जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, जबकि यहाँ पर ये चेंज गलत है। एंड सो वी हैव एन एरर हियर इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन नंबर 7, 2x होल स्क्वायर, लेट मी राइट इट, द गिवन पार्ट 2x whole square plus 4 into 2x plus 7. This is given as 2x square plus 8x plus 7. अब पहचानिए क्या गलती हो रही है यहाँ पर। Just look at this expression 2x square. क्या ये सही है? Let us first find the value of LHS on our own. अब हम भी इसको solve करते हैं and let us see what we get. यहाँ पर ब्रैकेट है और फिर स्क्वायरिंग हो रही है, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब का स्क्वायर करेंगे। एंड सो द स्क्वायर ऑफ 2 विल बी 4 एंड स्क्वायर ऑफ x विल बी x स्क्वायर। तो अब इस टर्म का जो स्क्वायर हो रहा है वो क्या आएगा 4x स्क्वायर, जबकि यहाँ क्या दिया गया है 2x स्क्वायर। तो यही गलती हो रही है। हियर वी कैन राइट एरर इन दिस टर्म, ये गलत है। और अब आगे तो सही है, 4 2 ज़ा 8x। अब आप देखिए यहाँ पर ब्रैकेट शो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 और 2x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये ब्रैकेट नहीं लिखा होता, कुछ इस तरह से होता, तो आप इसको 42x समझते। मल्टीप्लाई शो करना है तो या तो आप ब्रैकेट लगाइए या फिर आप इसको इस तरह से लिखिए। इन दोनों से हम समझ सकते हैं कि यहाँ ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। Next here we have 8x, then we have plus 7, and now since the like terms are not there, and so this will be the final answer and not this one. ये गलत है, ये सही है। We write here the correct statement is 2x whole square plus 4 into 2x plus 7. This should be equal to 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। तो यहाँ ये गलती है और ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन नंबर 8। लेट अस फर्स्ट राइट वॉट एवर इज गिवन। वी हैव बीन गिवन 2x होल स्क्वायर प्लस 5x, दिस इज इक्वल टू 4x प्लस 5x इक्वल टू 9x, ये हमें दिया गया है। फॉर दिस वी टेक द LHS। हम चेक करना चाहते हैं कि क्या गलती है, कहाँ पर गलती है। उसके लिए हम अब इसकी वैल्यू खुद निकालेंगे। LHS में हमने ले लिया 2x होल स्क्वायर प्लस 5x। अब आप देखिए स्क्वायरिंग हो रही है और ब्रैकेट भी है, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं उन सभी का स्क्वायर होगा, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का भी और वेरिएबल का भी, दोनों का ही स्क्वायर होगा। तो आप देखिए 2 का स्क्वायर इट विल बी 4 एंड देन x स्क्वायर विल बी x स्क्वायर इटसेल्फ एंड देन वी विल हैव प्लस 5x। अब ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये तो है x स्क्वायर वाली टर्म। यहाँ पर वेरिएबल पार्ट क्या है x स्क्वायर और यहाँ वेरिएबल पार्ट है ओनली x, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है। वेरिएबल तो सेम है x पर उनकी पावर्स अलग अलग हैं, और ऐसे में ये लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स क्या होती हैं, जब वेरिएबल भी सेम हो और पावर्स भी सेम हो। यहाँ पर वेरिएबल तो भले ही सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, तो ये अनलाइक टर्म्स है और आगे ये ऐड नहीं हो सकती। सो दिस इज द फाइनल आंसर। जबकि क्वेश्चन में क्या दे दिया 4x प्लस 5x। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर तो कर दिया, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का स्क्वायर तो हो रहा है 4, लेकिन जो वेरिएबल है x उसका स्क्वायर तो किया ही नहीं, और ऐसे में 4x ही छोड़ दिया और फिर इनको लाइक टर्म्स लेते हुए 9x आंसर दे दिया। तो कहाँ किस स्टेप में गलती है, ये वाला स्टेप, ये टर्म बिल्कुल गलत लिख दिया गया है। वी हैव वन एरर हियर।
और उसी से ये आंसर पूरा गलत हो गया। और ऐसे में वी कैन से द करेक्ट स्टेटमेंट, वी हैव टू राइट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑल्सो। द करेक्ट स्टेटमेंट इज 2x होल स्क्वायर प्लस 5x, दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x। ये है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट वी टेक द केस क्वेश्चन 9, 3x plus 2 whole square. What is given? We write first 3x plus 2 whole square. This is given equal to 3x square plus 6x plus 4. ये दिया गया है। और अब हम ढूंढते हैं कि क्या गलती है, इसके लिए LHS पार्ट लेते हैं 3x plus 2 whole square. अब आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 3x, तो उसका स्क्वायर करेंगे। हम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट आइडेंटिटी। फिर हम ये सेकंड टर्म देख रहे हैं 2, इसका स्क्वायर करेंगे और फिर हम इन दोनों वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड लेट अस सी व्हाट वी गेट। नाउ 3 स्क्वायर विल बी 9, x स्क्वायर विल बी x स्क्वायर प्लस 2 3 are 6, 6 2 are 12, x plus here we will have 4. We can write here since a plus b whole square, this is equal to a square plus 2ab plus b square. और हम देख सकते हैं a की जगह क्या है 3x और b की जगह है 2, और इस रिलेशनशिप से हमने इस स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया। ये जो बाइनोमियल का स्क्वायर हो रहा है उसको एक्सपेंड कर दिया यूजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी। और अब ये एक्सप्रेशन आ रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं लाइक टर्म्स नहीं है, तो आगे एडिशन और नहीं होगा और यही है फाइनल आंसर। अब इसको कंपेयर करते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, और हमारे पास आ रहा है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। तो यहाँ पर दो गलती हो रही हैं। पहली गलती तो ये हो रही है इस टर्म में और फिर इस टर्म में। सो वी हैव 2 errors, error in this one and error in this one. What is the error? यहाँ पर 3 का स्क्वायर तो किया ही नहीं गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म पूरी का ही स्क्वायर करना था, तो 3 का स्क्वायर 9 आता और फिर x स्क्वायर विल बी x स्क्वायर, और फिर हमें ये दोनों वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया, सिंपली लिख दिया गया 3x इंटू 2 6x, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया गया। जबकि किससे मल्टीप्लाई करना था? 2 से इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हुए हमें मिलना था 12x। तो ये है राइट आंसर, दिस इज़ द रॉन्ग वन। वी राइट द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। द करेक्ट स्टेटमेंट इज 3x plus 2 whole square, this will be equal to 9x square plus 12x plus 4. Now this is the correct statement. Next we have question 10 now. Substituting x equal to minus 3 in this expression, we get here, this is given in the question and we have to see whether this is the right one or the wrong one. तो उसके लिए हम यही expression लेके चलते हैं और अब हम खुद इसमें x की जगह -3 सब्सटीट्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। सब्सटीट्यूटिंग x equal to -3 in x square plus 5x plus 4 we get, चलिए रखते हैं इसमें x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -3 रखने वाले हैं। -3 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5x का मतलब 5 इंटू एक्स, तो मल्टीप्लाई शो करने के लिए हमने ये जो नेगेटिव वैल्यू है उसको ब्रैकेट में एनक्लोज करके रखा है और इसी तरह से यहाँ भी हमने नेगेटिव वैल्यू को ब्रैकेट में रख के फिर स्क्वायर किया है। नाउ व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ -3? कई बार बच्चे इसको -9 लिख देते हैं और वो गलत है। -3 होल स्क्वायर इसका मतलब हुआ -3 इंटू -3, -3 को -3 से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और ऐसे में आप देखेंगे माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस एंड 3 3 इट विल बी 9 एंड सो द आंसर हियर विल बी 9। देन 5 इंटू -3 इट विल बी -15 एंड देन वी हैव +4। ये क्लियर हो गया। 5 इंटू -3 कितना हो गया? -15। नाउ सिंप्लीफाइंग फर्दर वी सी दैट 9 एंड 4 बोथ आर पॉजिटिव, तो इनको एक साथ ले लेते हैं प्लस वैल्यूज़ को और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15। 9 + 4 इट्स 13 एंड देन -15, दिस विल बी इक्वल टू -2
और अब यहाँ पर देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ये तो आंसर आ रहा है 15 और ये तो गलत है। अब इन्होंने कहाँ गलती की है वो देखिए, ये स्टेप बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही रखा है, फिर -3 होल स्क्वायर इट्स 9 इज़ ओके, पर अब यहाँ पर गलती कर दी है इस स्टेप पे। हियर वी सी वन एरर। क्या गलती है? 5 - 3 2 कर दिया, मल्टीप्लाई करने की जगह सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या करना था? मल्टीप्लाई करना था, हाँ आना चाहिए था -15 और लिख दिया गया सिर्फ 2 और उससे पूरा आंसर गलत हो गया। तो समझ रहे हैं ना, ये गलती नहीं करनी है। यहाँ ब्रैकेट लगा रहे हैं और इसका मतलब क्या है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों वैल्यूज़ को, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। रिमेंबर दिस एंड सो द राइट आंसर विल बी -2. वी राइट हियर द करेक्ट आंसर इज -2. ठीक है, we have one more part for the same question. We have been given this expression now and we have to substitute x by -3 और फिर इनका ये आंसर आ रहा है। देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है जब हम इस एक्सप्रेशन में x की जगह -3 रखते हैं। We write the solution here. Substituting x equal to -3 in x square minus 5x plus 4, we write here x square minus 5x plus 4. अब x की जगह हम रख रहे हैं -3, then whole square minus 5 into x की जगह हम रखेंगे -3 plus 4. ठीक है, नाउ -3 होल स्क्वायर इट इज़ 9. अभी अभी हमने डिस्कस किया था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो ये आ गया 9. अब यहाँ पर आप देखिए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो फिर से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 3 ज़ा 15 और फिर है +4. नाउ व्हाट विल बी द आंसर? 15 + 9 इट विल बी 24 एंड देन +4 इट विल बी 28. तो 28 आंसर आना चाहिए और आ क्या रहा है? ये तो -2 आ रहा है. देखते हैं क्या गलती की है यहाँ पर. ये ठीक है 9, बिल्कुल ठीक लिखा है 9 और फिर यहाँ लिख दिया -15. देखिए ये गलत हो गया. -5 को जब आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस करना चाहिए था और यहाँ गलती की गई है, प्लस नहीं करके -15 ही छोड़ दिया और देखिए उससे आंसर गलत हो गया. सो हियर द एरर लाइज इन दिस सिंबल. हियर वी सी one error and so the correct answer is 28. The correct answer is 28 in this case. We have one more part for same question. Here we have been given the expression x square plus 5x और इसमें फिर से x की जगह -3 रखना है और इनका आंसर आ रहा है -24. देखिए इसमें कोई गलती है क्या? है तो कहाँ गलती की जा रही है वो ढूंढनी है आपको. तब तक हम अपनी तरफ से भी इसका आंसर निकालते हैं. सब्स्टिट्यूटिंग x equal to -3 in x square plus 5x, we get, let us see, x square plus 5x ये एक्सप्रेशन है. x की जगह हमें रखना है -3 देन होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3. तो आप इस तरह से इंटू साइन भी बीच में लिख सकते हैं और आप चाहें तो सिंपली 5 एंड देन ब्रैकेट -3 लिखेंगे. इसका मतलब भी 5 को -3 से मल्टीप्लाई करना है और इसका मतलब भी 5 को -3 से मल्टीप्लाई करना है. तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इनमें अक्सर स्टूडेंट्स को डाउट रहते हैं, ये क्लियर कर लीजिए. नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू? -3 होल स्क्वायर ये होगा 9, अभी हमने डिस्कस किया था. एंड देन नाउ वी सी दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, तो प्लस इंटू माइनस में माइनस आएगा एंड 5 3 ज़ा 15. नाउ दिस विल बी इक्वल टू -6. एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. बड़ा नंबर है 15, 15 - 9 इट विल बी 6 और जो साइन बड़े नंबर का होता है वही साइन आंसर का होता है. 15 बड़ा है नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा -6. दिस इज द आंसर एंड व्हाट इज गिवन हियर इट्स -24. फिर से गलत दे दिया है और क्या गलती है पहचानिए. यहाँ पर आप देखेंगे ये -9 दे दिया है और ये तो गलत है. -3 होल स्क्वायर शुड बी +9. सो वी सी वन एरर एट दिस स्टेप. ये स्टेप गलत है, यहाँ पर आना चाहिए था +9. -9 कैसे आएगा? -3 होल स्क्वायर विल बी -3 इंटू -3. माइनस माइनस विल बी प्लस
एंड देन 3 3 ज़ा 9, तो -9 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? +9, और सिंपली वी शुड राइट 9 हियर, एंड सो दिस इज द एरर. द राइट आंसर इज, let me erase this one. The correct answer is -6. Okay, next we take here question 11. Now what is given? y minus 3 whole square, ये दिया गया है y square minus 9, और अब हमें चेक करना है कि क्या ये सही है या नहीं. वी टेक द LHS पार्ट, y minus 3 whole square. अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? येस, द सेकेंड वन. दिस इज ऑफ द फॉर्म a minus b whole square, और इसको कैसे एक्सपैंड करते हैं? फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू स्क्वायर, देन माइनस मल्टीप्लाई बोथ दीज वैल्यूज बाय 2. सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह से एक्सपैंड करते हैं. सिंस वी हैव दिस रिलेशनशिप, अब इसी को यूज़ करते हुए यहाँ हम एक्सपैंड करेंगे. फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू स्क्वायर एंड देन माइनस मल्टीप्लाई बोथ दीज बाय 2, और इससे हमें मिलेगा y स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6y प्लस 3 स्क्वायर विल बी 9, एंड दिस शुड बी द आंसर. और दिया क्या गया है? y स्क्वायर माइनस 9. यहाँ सिंपली y का स्क्वायर किया गया, 3 का स्क्वायर किया गया, और बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिया. ये गलत है, यहाँ पर ये मिसिंग टर्म है. दोनों ही वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये भी ज़रूरी है, और माइनस साइन आएगा यहाँ पर. और ये जो स्क्वायर कर रहे हैं हम, ये पॉजिटिव होता है, जो सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑलवेज इज़ पॉजिटिव, एंड सो हियर वी विल गेट +9. तो ये भी गलती है. तो अब आप समझ सकते हैं क्या एरर है यहाँ पर. Here we see error in the whole RHS, and so we write the correct statement. The correct statement is y minus 3 whole square, this will be equal to y square minus 6y plus 9. This is the correct statement. Okay, next we take question 12. Now it has been given that z plus 5 whole square, this is equal to z square plus 25. बस z का स्क्वायर कर दिया, 5 का स्क्वायर कर दिया. क्या ये सही है? कौन सी टर्म मिसिंग है? यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करके भी तो लिखना चाहिए था, तो ये गलती यहाँ पर दिख रही है. हम लेते हैं LHS और अब इसको करेक्ट करते हैं. z plus 5 होल स्क्वायर कैसे करना चाहिए था? फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू स्क्वायर plus multiply both these by 2, and so the answer should be z square plus 2 into 5, it should be 10, z plus 5 square is 25. Here we can give the reason, since a plus b whole square, इसको कैसे लिखते हैं? a square plus 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, और ऐसे में ये राइट आंसर होना चाहिए था, और दिया गया जो आंसर है वो गलत है. वी सी वन एरर हियर, एंड द करेक्ट स्टेटमेंट इज, वी नीड टू राइट इट ऑल्सो इन द आंसर. द करेक्ट स्टेटमेंट इज z plus 5 whole square, this is equal to z square plus 10z plus 25. ये राइट आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन 13. हियर वी हैव बीन गिवन 2 बाइनोमियल्स और उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं. व्हाट इज गिवन? वी राइट इट वंस. 2a plus 3b a minus b, ये दिया गया है 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर. अब इनका आंसर सही है या गलत है, उसके लिए हम खुद इनको मल्टीप्लाई करते हैं. अभी तक जो समझ में आ रहा है वो क्या किया गया है? 2a को a से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म लिख दी गई है, और फिर 3b को माइनस b से मल्टीप्लाई करके सेकेंड टर्म लिख दी गई है. और फिर यहाँ पर ये 2a को इधर माइनस b से मल्टीप्लाई नहीं किया गया, और 3b को a से मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा गया. तो 2 टर्म्स यहाँ पर मिसिंग हैं, ये आंसर अधूरा है. तो पूरा कैसे करेंगे? वी फाइंड दिस प्रोडक्ट ऑन आवर ओन. वी टेक द LHS 2a plus 3b into a minus b.
दो बाइनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म लेंगे 2a और इसको पूरे सेकंड बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम लेंगे इसकी सेकंड टर्म और पूरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले। अब यहाँ से 2a इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा और ये 3b भी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा और यही हमें चाहिए। पहले एक्सप्रेशन की हर एक टर्म सेकंड एक्सप्रेशन की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, वो अब हम कर रहे हैं। 2a को a से मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 2a स्क्वायर माइनस 2a को b से मल्टीप्लाई करेंगे 2ab प्लस अब 3 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ से a से 3b को एंड 3b इंटू a इट विल बी 3ab एंड देन प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस 3b into b it will be 3b square and this will give you, here we see two like terms in the center, minus 2ab plus 3ab, ये दोनों ही like terms हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स सेम हैं, उनकी पावर्स भी सेम हैं, तो like terms हैं। अब इनको मर्ज करेंगे, here we will have 2a square और अब ये देखिए इनके सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को हम ऐड करेंगे, -2 plus 3 it will be +1, so we can write +1 और वेरिएबल पार्ट सेम रहेगा ab -3b स्क्वायर। अब इस 1 को हम लिखना स्किप कर सकते हैं, इसको शो करना ज़रूरी नहीं है एंड सो 2a स्क्वायर प्लस ab -3b स्क्वायर, दिस इज़ द आंसर। और दिया क्या गया है, देखिए ये प्लस ab वाली टर्म मिसिंग है, सो हियर वी सी दैट द आंसर इज़ इनकम्प्लीट। ये जो RHS है ये इनकम्प्लीट है एंड द करेक्ट स्टेटमेंट वी नीड टू राइट इट। The correct statement is we write here 2a plus 3b, ये हो गया पहला बाइनोमियल, multiplied by a minus b, this is equal to 2a square plus ab minus 3b square। ये है करेक्ट स्टेटमेंट और वो आंसर इनकम्प्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट वी टेक हियर क्वेश्चन नंबर 14। अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई टू बाइनोमियल्स। इट हैज़ बीन गिवन इन द क्वेश्चन a plus 4 into a plus 2, दिस इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 8। फिर से देखिए ये फर्स्ट टर्म्स मल्टीप्लाई कर दी दोनों एक्सप्रेशंस की और फिर ये सेकेंड टर्म्स मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है, तो सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई किया गया है और सेकेंड टर्म्स को। हमें क्या चाहिए था कि ये फर्स्ट टर्म यहाँ पर 2 से भी मल्टीप्लाई होती और यहाँ पर ये जो 4 है ये a से भी मल्टीप्लाई होता है, ये भी तो चाहिए था जो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो ये आंसर फिर से क्या है, इनकम्प्लीट है। ये हम यहीं से देखकर समझ पा रहे हैं। और अब फाइनल आंसर हम लिखेंगे, वी टेक द LHS a plus 4 इंटू a प्लस 2, a को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस 2 से और ऐसे ही 4 को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस 2 से, दिस विल गिव यू a स्क्वायर प्लस 2a, a जो है a से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 से भी, तो a स्क्वायर प्लस 2a और यहाँ पर 4 को a से करेंगे 4a एंड देन 4 इंटू 2 इट विल बी 8। अब बीच में आप ये दो लाइक टर्म्स देख पा रहे हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे एंड व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 इट विल बी 6 एंड a प्लस 8। जब हम लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं तो सिर्फ ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ही ऐड होते हैं, वेरिएबल सेम रहता है एंड सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो अब यहाँ पर ये जो 6a टर्म है वो मिसिंग है, इसीलिए ये आंसर इनकम्प्लीट है। वी राइट हियर द करेक्ट स्टेटमेंट, the correct statement is we write here a plus 4 into a plus 2, this should be equal to a square plus 6a plus 8। ये आंसर होना चाहिए था। यहाँ पर आप जब ये प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो फोर्थ आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते थे, एक बार हम उससे भी इसको करके देखते हैं। a plus 4 इंटू a प्लस 2, यहाँ पर आप ले सकते थे a स्क्वायर प्लस सेंटर में आपकी टर्म आती 4 प्लस 2 इंटू a और फिर यहाँ पर 4 इंटू 2, दिस शुड हैव बीन a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 8 यूजिंग द आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। यहाँ पर मैं स्मॉल a नहीं ले रही क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल a है इसीलिए नहीं लिया, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। यही थी हमारी फोर्थ आइडेंटिटी।
तो इस तरह से भी आप इस आंसर पर पहुंच सकते हैं। बीच में तो हमें सम लेना है, ये पहला जो टर्म है ये तो सेम है दोनों ही एक्सप्रेशंस में, तो उसका स्क्वायर हो रहा है फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में एज इट इज़ है, और लास्ट टर्म में वो है ही नहीं, और फिर मिडिल टर्म में हम ये वैल्यूज़ जो इक्वल नहीं है उनका सम लेते हैं, और लास्ट टर्म में हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं। तो इस तरह से भी हमें देखिए सेम आंसर आ रहा है, a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 8। तो आप चाहें तो इस तरह से दो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हुए भी आंसर तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप इस केस में आइडेंटिटी अप्लाई करते हुए जो फोर्थ आइडेंटिटी है तब भी आप इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। और दोनों ही केस में आप जो गिवन आंसर है उसमें जो एरर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव वन मोर हियर, क्वेश्चन 15, a minus 4 into a minus 2, this is given, we again have two binomials और इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a minus 4 into a minus 2, it is this time given a square minus 8। फिर से देखिए फर्स्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर दे दिया। गलती है ना यहाँ पर, फर्स्ट टर्म को इसकी सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई करना चाहिए था, और यहाँ इसकी सेकंड टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया है। फिर से हम कह सकते हैं कि ये आंसर इनकम्प्लीट है। अब इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, हम लेकर चलते हैं LHS, a माइनस 4 इंटू a माइनस 2। फिर से आप यहाँ पर a को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस 2 से, और यहाँ से माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस 2 से, और ऐसे में आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस 2a जब आप a को दोनों ही टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर माइनस 4 को a से मल्टीप्लाई किया माइनस 4a, और माइनस 4 को आप माइनस 2 से करेंगे। रिमेंबर माइनस के बाद जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो टर्म्स के साइन चेंज होते हैं, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 2 ज़ा 8। अब ये सेंटर में लाइक टर्म्स हैं, माइनस 2 माइनस 4 इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स हैं, ये एडअप हो जाएंगे, a स्क्वायर हियर वी विल हैव माइनस 6 और वेरिएबल सेम रहेगा a और प्लस 8। ठीक है, ये जो लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट है माइनस 2 और माइनस 4 ये एडअप होके माइनस 6 हो गया, और वेरिएबल सेम रहा a, और ये आंसर आना चाहिए था जबकि इन्होंने ये आंसर दिया है। तो माइनस 6a ये टर्म मिसिंग है जो दिया आंसर है उसमें, एंड सो द आंसर गिवन वन is incomplete, and the correct statement we can write here, the correct statement is, we write here a minus 4 into a minus 2, this should be equal to a square minus 6a plus 8। इस क्वेश्चन में भी आप आइडेंटिटी 4 अप्लाई कर सकते थे, उसको भी एक बार अप्लाई करके देखते हैं। आप दोनों में से कोई सा भी एक मेथड फॉलो करेंगे जो भी आपको इजी लगे, और यहाँ पर आप देखिए a माइनस 4 इंटू a माइनस 2, तो अब आपकी फर्स्ट टर्म दोनों ही केस में सेम है, तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें a स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पर a आएगा, और प्लस हमारे पास यहाँ पर कोई और एक टर्म आएगी, एक टर्म यहाँ एक टर्म यहाँ, इस तरह का फॉर्मेट होगा। ये आपको समझ होनी चाहिए यूजिंग द फोर्थ आइडेंटिटी हियर। एंड नाउ व्हाट एल्स, ये तो हो गया। दो नंबर्स देखिए माइनस 4 और माइनस 2, इनको देखिए, यहाँ आएगा इनका सम माइनस 4 प्लस माइनस 2, और यहाँ आएगा इनका प्रोडक्ट माइनस 4 इंटू माइनस 2, ये दोनों ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं। हियर वी कैन टेक एज माइनस 4 इंटू माइनस 2, और अब ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इट विल बी माइनस 6a, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, 4 2 ज़ा 8। अब देखिए वही आंसर आ रहा है या नहीं, तो ये हमने यूजिंग फोर्थ आइडेंटिटी आंसर लिया है, यूजिंग आइडेंटिटी फोर्थ, इससे ये रिजल्ट लिया है, और ये हमने यहाँ पर एक्चुअली दोनों बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई किया है। तो आप दोनों में से कोई सा भी एक मेथड फॉलो करके सही आंसर तक पहुँच सकते हैं, और फिर जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी टेक दिस वन, क्वेश्चन 16। नाउ व्हाट इज गिवन, 3x square upon 3x square, it is given as 0। और क्या ये सही आंसर दिया गया है? अगर हम 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? जब हम सेम फैक्टर्स को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं और कैंसिल कर लेते हैं तो आंसर आता है 1, बिकॉज वी नो 3 1 ज़ा 3। ऐसे ही x स्क्वायर इंटू 1 इज़ x स्क्वायर, 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है,
तो जब हम यहाँ पर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और ऐसे ही एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो ऐसे में जब हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे आंसर 1 आना चाहिए। तो जब हम इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को भी और वेरिएबल पार्ट्स को भी, तो आंसर क्या आएगा हर बार, 1 into 1, इट विल बी फाइनली 1। एंड सो हियर वी सी दैट दिस इज एरर, ये गलत है आंसर जो दिया गया है। और अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, वो जब सेम फैक्टर्स को कैंसिल करते हैं तो आंसर लिख देते हैं 0। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आंसर 0 नहीं होगा, आंसर होगा 1। ठीक है, सो वी राइट हियर द करेक्ट स्टेटमेंट इज 3x square upon 3x square equal to 1। दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। ये क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर अब तक आप करते आए हैं तो अब दोबारा नहीं करेंगे, प्रॉमिस दिस टू मी। नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन नंबर 17। हियर वी हैव टू डिवाइड 3x square plus 1 by 3x square। तो आप देखिए, एक बाइनोमियल को एक मोनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है और क्या रूल है उसको रिकॉल कीजिए। यहाँ आंसर दिया गया है 1 + 1 = 2, और अगर हम डिवाइड करें तो कैसे करना चाहिए था, 3x square + 1 upon 3x square है। जब हम एक पॉलिनोमियल को एक मोनोमियल से डिवाइड करते हैं तो पॉलिनोमियल की हर एक टर्म को सेपरेटली उस मोनोमियल से डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड each term of the polynomial, and here in this case it is binomial, so we will divide each term of the binomial by the monomial separately। तो ऐसे में पहली टर्म है 3x square, इसको हम 3x square से डिवाइड करेंगे, प्लस अब सेकेंड टर्म हो गई 1, इसको अलग से हम 3x square से डिवाइड करेंगे। अब 3x square upon 3x square ये तो 1 होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, देखिए इक्वल टू 1, तो इसकी जगह तो हम 1 लिख लेंगे, और ये हो गया 1 upon 3x square। ये दोनों तो डिवाइड नहीं कर सकते, एंड सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। जबकि यहाँ क्या कर दिया गया है, 3x square को 3x square से कैंसिल कर दिया, 1 लिख दिया और 1 + 1 2 लिख दिया। ये तो गलत है ना। तो ये जो दिया गया है ये गलत है, एरर है यहाँ पर। अगेन इट इज़ ऑल्सो एन एरर, ये गलत दिया गया है। व्हाट शुड बी द आंसर, 1 + 1 upon 3x square, ये राइट आंसर है। ये कैंसिल करके इस तरह से आंसर नहीं मिल सकता। जब बीच में प्लस हो, हमने बात की थी कि अगर बीच में प्लस हो तो सेम फैक्टर्स जो दिख रहे हैं ऊपर नीचे वो एक्चुअली सेम फैक्टर्स हैं नहीं। ऊपर एक फैक्टर है, वो है 1 + 3x square, कंबाइंड फॉर्म में एक फैक्टर है, और नीचे ये एक मोनोमियल है। तो अभी हमको लग रहा है कि हम इनको कैंसिल कर दें, पर नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस है। जब भी बीच में प्लस या माइनस हो हम इस तरह से कैंसिल नहीं कर सकते इन सिंपल वर्ड्स। अगर बीच में मल्टीप्लाई साइन हो तभी हम ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं। जब फैक्टर फॉर्म हो ऊपर भी नीचे भी तभी हम कैंसिल कर सकते हैं, बीच में मल्टीप्लाई हो तो। अब क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है हम कैंसिल नहीं कर सकते, रिमेंबर दिस ऑलवेज। एंड नाउ हियर द करेक्ट स्टेटमेंट, वी नीड टू शो इट सेपरेटली। द करेक्ट स्टेटमेंट इज as we write 3x square plus 1 upon 3x square, this is equal to 1 plus 1 upon 3x square. This is the correct statement. Next we take here question 18. Now it has been given 3x upon 3x plus 2, दिस इज इक्वल टू 1/2। अब फिर से देखिए 3x को 3x से कैंसिल कर दिया गया है और 1 मानते हुए 1/2 आंसर दिया गया है। ऐसा अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं पर आप नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर बीच में प्लस है, जब भी बीच में प्लस हो या माइनस हो तो हम इस तरह से ऊपर नीचे कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये कैंसिल नहीं होगा और ऐसे में ये आंसर गलत है। तो फिर सही आंसर क्या होगा, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल है डिनोमिनेटर में और ऊपर है मोनोमियल, तो मोनोमियल को हम पॉलिनोमियल से डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं जैसे अभी हमने किया था यहाँ पर, लेकिन मोनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड नहीं कर सकते और ऐसे में यही एक्सप्रेशन अपने आप में आंसर होगा। हियर वी सी दैट 3x upon 3x plus 2, this will be 3x upon
3x प्लस 2। इस तरह से हम डिवाइड नहीं कर सकते, एंड सो दिस इज द एरर, वी शो हियर द एरर, एंड दैट दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये वाला स्टेटमेंट, कि इसका आंसर यही रहेगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, वी सी दैट द डिवीजन ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस विल बी सेम, द सेम डिवीजन फॉर्म ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस। इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, एंड दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। हियर वी हैव वन एरर। इस तरह से कैंसिल नहीं कर सकते, बीच में प्लस हो तो। ठीक है, हियर वी सी क्वेश्चन नंबर 19। वी हैव बीन गिवन 3/4x प्लस 3 इक्वल टू 1/4x। देखिए फिर से यहाँ पर बीच में प्लस है, और 3 से 3 कैंसिल करके 1/4x आंसर दिया गया है। ये फिर से गलत किया गया है यहाँ पर, क्योंकि बीच में प्लस है हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते, और ऐसे में दिस इज द एरर हियर। तो फिर सही आंसर क्या होगा? फिर से देखिए, आप एक मोनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, मोनोमियल को बायनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे में ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ये ही आंसर रहेगा। वी सी दैट 3/4x प्लस 3 ये डिवीजन नहीं कर सकते, और ऐसे में 3/4x प्लस 3 विल बी द आंसर इटसेल्फ, एंड दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यही करेक्ट स्टेटमेंट है। 1/4x is the wrong answer given here. Okay, next we take question 20. Here we have one binomial divided by one monomial. अब ये division possible है. It has been given 4x plus 5/4x. अब आप देखिए 4x ऊपर भी दिख रहा है और नीचे भी, क्या हम कैंसिल कर सकते हैं इन्हें? सोचिए ज़रा, हमें यहाँ आंसर दिया गया है 5। अब क्योंकि बीच में प्लस है तो हम एक्चुअली इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते, 4x को 4x से कैंसिल नहीं कर सकते, हालांकि यहाँ पर कैंसिल करके आंसर 5 दिया गया है जो कि गलत है। सही आंसर क्या होगा? वी टेक द LHS हियर, 4x प्लस 5/4x। अब यहाँ पे क्योंकि एक बायनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो बायनोमियल की हर एक टर्म को हम मोनोमियल से सेपरेटली डिवाइड करेंगे, और ऐसे में 4x/4x विल बी 1 एंड देन प्लस 5/4x। ये है राइट आंसर, और ये क्या है? रॉन्ग आंसर। हियर वी सी वन एरर, एंड नाउ वी कैन राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। हेंस the correct statement it is 4x plus 5/4x equal to 1 plus 5/4x। ये करेक्ट स्टेटमेंट है और ये इनकरेक्ट। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको कि जब भी एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना हो मोनोमियल से, तो पॉलिनोमियल की हर एक टर्म को सेपरेटली हम मोनोमियल से डिवाइड करके फिर फाइनल आंसर लाएंगे। नेक्स्ट वी टेक हियर क्वेश्चन 21। हियर अगेन वी हैव वन बायनोमियल डिवाइडेड बाय वन मोनोमियल, एंड वी हैव बीन गिवन 7x प्लस 5/5, दिस इज इक्वल टू 7x। बताइए क्या यहाँ हम 5 से 5 को कैंसिल कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, बीच में प्लस है, इसी तरह से बीच में माइनस होता तब भी हम ऊपर नीचे कैंसिल नहीं कर सकते। कब कैंसिल कर सकते हैं? अगर बीच में मल्टीप्लाई साइन होता। अगर ऐसा होता 7x इंटू 5/5, तब हम इजीली इनको कैंसिल करके आंसर 7x लिख सकते थे, पर अभी क्योंकि प्लस है तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, और ऐसे में ये जो आंसर दिया गया है ये गलत दिया गया है। वी हैव वन एरर हियर, एंड नाउ वी नीड टू राइट द करेक्ट आंसर। फॉर दिस वी टेक द LHS, 7x प्लस 5/5। एक बायनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे? बायनोमियल की हर एक टर्म को सेपरेटली हम मोनोमियल से डिवाइड करेंगे। 7x को अलग से 5 से डिवाइड करना है, 5 को अलग से, और ऐसे में 7x/5 विल बी एज इट इज़, और 5/5 इट विल बी 1, एंड नाउ दिस इज़ द करेक्ट आंसर। वी राइट हियर द करेक्ट स्टेटमेंट इज़ we have 7x plus
upon 5, this will be equal to 7x upon 5 plus 1, and now this is correct, and here we have one error. Okay, with this we complete exercise 14.4. I hope you have understood all these questions, and now you have geared up to do all the questions rightly. Now no more you will be doing any error in your algebra exercises. I hope this from you. With this we also complete chapter 14. I hope you enjoyed solving all the questions from this chapter, and also you can create many questions of your own, and you can always ask your friends and get one quiz done in your classroom. For this now, let me leave. Bye for now.